ابھی آپ کو اہم خبر دیں کہ وزیراعظم عمران خان اس وقت روسی صدر سے ملاقات ان کی ہوئی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ وزیراعظم عمران خان 2 روزہ روس پر گئے ہوئے ہیں اور کل بھی وزیراعظم کی ولادیمیر پوٹن سے ملاقات ہوئی تھی اور آج بھی وزیراعظم عمران خان کی روسی صدر سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ وزیراعظم عمران خان کی روسی صدر سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی ہوا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ وزیراعظم عمران خان کی روسی صدر سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ یہ اہم ملاقات ہے جس پر پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کی روسی صدر سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے طارق چودھری سے۔ جی طارق چودھری، بتائیے گا۔ جی طارق چودھری، ملاقات کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی، پرائم منسٹر عمران خان اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ملاقات ہو چکی ہے کرملن میں۔ یہ ملاقات جو ہے وہ 1 on 1 ہو رہی ہے اور اس ملاقات کے بعد پرائم منسٹر عمران خان کے اعزاز میں روسی صدر اظہارنامہ بھی دیں گے اور اظہارنامے کے دوران بھی ملاقات اور بات چیت جاری رہے گی۔ یہ ملاقات جیسے میں نے پہلے کیا کہ 1 on 1 ہے اور اس ملاقات میں دیگر وفود جو ہیں وہ شریک نہیں ہیں۔ اس ملاقات میں دو طرفہ معاملات جو ہیں ان پر بات چیت ہوگی۔ اس کے علاوہ پاکستان اور روس کے درمیان جو گیس پائپ لائن ٹھیک ہے، طارق چودھری سے ہم رابطہ کرنے کی دوبارہ کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم عمران خان 2 روزہ دورے پر روس گئے ہوئے ہیں اور وزیراعظم عمران خان کی روسی صدر سے 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اس ملاقات کو بہت اہم قرار دیا گیا تھا۔ وزیراعظم عمران خان کی روسی صدر سے ملاقات ہوئی ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ جس میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ آج وزیراعظم کا پورا دن جو ہے وہ روس میں مصروف گزرے گا۔ وزیراعظم کو ظہرانہ بھی دیا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان کی روسی صدر سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں اس حوالے سے کہ وزیراعظم عمران خان کی روسی صدر سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ 2 روزہ دورہ ہے۔ وزیراعظم عمران خان کابینہ کے ہمراہ روس دورے پر گئے ہوئے ہیں اور وزیراعظم کے ہمراہ جو ہے فواد چودھری، اسد عمر، شہباز گل اور دیگر جو رہنما ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن ابھی جو ملاقات ہوئی ہے وہ 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے روسی صدر سے وزیراعظم عمران خان کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی روسی صدر سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ایک بار پھر بات کریں گے اپنے نمائندے طارق چودھری سے۔ جی طارق چودھری، آج وزیراعظم کا جو ہے وہ مصروف دن گزرے گا، کیا کیا مصروفیات رہیں گی بتائیے گا۔ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ملاقات جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور یہ ملاقات 2.5 سے 3 گھنٹے تک جاری رہے گی۔ پہلے جو ہے روسی صدر اور پرائم منسٹر کے درمیان 1 on 1 ملاقات ہوگی، جس کے بعد روسی صدر نے پرائم منسٹر کے اعزاز میں اظہارنامہ دیا ہے۔ اس میں بھی پرائم منسٹر عمران خان شریک ہوں گے اور اس دوران بھی اس وقت لنچ پر بھی مذاکرات اور بات چیت کا جاری رہے گا۔ جو مذاکرات کا موضوع ہے اس میں سب سے بڑا اہم موضوع افغانستان اور پاکستان کے درمیان افغانستان کی جو صورتحال ہے، خاص طور سے ہیومینٹیرین کرائسس ہے اور پاکستان کا جو افغانستان کے معاملے میں موقف ہے اس پر بات چیت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ روسی صدر نے حالیہ دنوں میں جو اسلاموفوبیا کے بارے میں اپنے مثبت خیالات کا اظہار کیا تھا اس پر پرائم منسٹر سے پہلے شکریہ ادا کریں گے۔ آج پھر ایک مرتبہ اس موضوع پر بات چیت ہوگی۔ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں، بائلیٹرل معاملات ہیں، اس پر بھی بات چیت ہوگی۔ اس کے علاوہ ریجنل ایشوز جو ہیں وہ بھی زیر بحث آئیں گے اور اس بات کا امکان ہے کہ جو یوکرین کی تازہ صورتحال ہے اس پر بھی بات چیت ہوگی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری ہوگی جس میں تمام معاملات جو زیر بحث آئے ہیں اس میں احاطہ ہوگا۔ جہاں تک دیگر مصروفیات کا تعلق ہے، آج پرائم منسٹر نے اس ملاقات سے پہلے انہوں نے جو جنگ وین کے شہداء ہیں
ان की एक यादगार है यहाँ मॉस्को में, वहाँ का दौरा किया था। इस मौके पर उनको मुकम्मल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो गुमनाम सिपाही हैं उनकी यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई थी। इसके बाद अभी जो मुलाकात जारी है तकरीबन 2.5 घंटे जारी रहेगी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की चंद बड़ी अहम मसरूफियात है। एक तो जो मॉस्को की जामिया मस्जिद है तारीखी, उसका दौरा करना प्राइम मिनिस्टर ने। इस दौरे की दावत जो है मस्जिद के जो शाही इमाम हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दी है और जितने भी सरबराह मुल्क रूस में आते हैं उनको सरकारी तौर पर, ये मुसलमान मुल्कों के सरबराह आते हैं, उनको ये दावत दी जाती है। उसके बाद रूस के नायब वज़ीर जो हैं उनसे मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर की। ये जो नायब वज़ीर हैं ये एनर्जी के मामलात के इंचार्ज हैं, लिहाजा गैस पाइपलाइन और जो एनर्जी का असूल है इस हवाले से भी तफसीली बातचीत मतवक्को है। उसके बाद आज रूसी मिनिस्टर से मुलाकात भी है प्राइम मिनिस्टर की, उनके साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा एक साइनिंग सेरेमनी है, उसको भी विटनेस करेंगे, प्राइम मिनिस्टर उसमें शरीक होंगे। जबकि मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स के अहम अफराद यहाँ पर मौजूद हैं वो मुख्तलिफ मौजूद पर साइन करेंगे। इसके अलावा आज जो है एक रूसी मीडिया के साथ इंटरेक्शन भी प्राइम मिनिस्टर के शेड्यूल में शामिल है और उसके बाद रात तकरीबन 9 से 10 बजे के दरमियान इमरान खान साहब जो हैं वो अपने दौरे के इख्तिताम पर इस्लामाबाद के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है तारिक चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर से मुलाकात जारी है जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने दूसरी जंग अजीम में मारे जाने वाले गुमनाम सिपाहियों की यादगार पर फूल भी चढ़ाए हैं। इस मुलाकात से कबल आपको अब अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म का 2 रोजा जो ये तारीखी दौरा है ये मॉस्को में मौजूद है इस वक्त वज़ीर आज़म, और एयरपोर्ट पर डिप्टी वज़ीर खारजा ने रेड कारपेट पर कल वज़ीर आज़म का इस्तकबाल भी किया था और कप्तान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात कर रहे हैं जिसमें इस्लामोफोबिया, अफगान सूरत हाल पर बात भी कर रहे हैं। कारोबारी शख्सियात से भी उनकी मुलाकात तय है और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान आज बड़ी मस्जिद का दौरा भी करेंगे। ये दौरा भी उनके मसरूफियात में शेड्यूल है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर से मुलाकात जारी है जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। और इस मुलाकात से कबल वज़ीर आज़म ने दूसरी जंग अजीम में मारे जाने वाले गुमनाम सिपाहियों की यादगार पर फूल भी चढ़ाए हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि ये 2 रोजा दौरा है वज़ीर आज़म का। दोनों रोज वज़ीर आज़म के बहुत मसरूफ गुजरे हैं। कल वज़ीर आज़म ने रूस के तारीखी दौरे पर वो मॉस्को पहुंचे जहां पर एयरपोर्ट पर डिप्टी वज़ीर खारजा ने रेड कारपेट पर वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया है और वज़ीर आज़म इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया कल। और आज वज़ीर आज़म की अहम मुलाकात है रूसी सदर के साथ जो कि जारी है जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया जा रहा है। और इस मुलाकात से कबल वज़ीर आज़म ने दूसरी जंग अजीम में मारे जाने वाले गुमनाम सिपाहियों की यादगार पर फूल भी चढ़ाए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर से मुलाकात का जो सिलसिला है वो जारी है। एक बार फिर बात करेंगे अपने नुमाइंदे तारिक चौधरी से। जी तारिक, बताइएगा। जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात का आगाज हो चुका है। ये मुलाकात जो है वो 1-on-1 हो रही है। इस मुलाकात के बाद जब बायलैटरल मुलाकात खत्म हो जाएगी तो उसके बाद इमरान खान साहब के एजाज से रूसी सदर की जानिब से ज़हराने का एहतमाम किया गया है और ये ज़हराना भी जो है वो वर्किंग लंच होगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और रूसी सदर जो है बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। ये मुलाकात 2.5 से 3 घंटे तक बताई जा रही है जारी रहेगी और इस मुलाकात के इख्तिताम पर जो है वो बाकायदा तौर पर अलामिया जारी किया जाएगा। इस मुलाकात के हवाले से जो सफारती माहिरीन है उनका कहना है कि पाकिस्तान के रूस के दरमियान जो 2 तरफा मामला हैं, बायलैटरल इशूज हैं, उस लिहाज से बड़ी अहम मुलाकात है चूँकि कई माह पहले से इस मुलाकात का स्केड्यूल और इसके एजेंडा आइटम्स तैयार किए जा रहे थे। चूँकि माजी में रूस के और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो बहुत गर्म जोशी पर मबनी नहीं रहे, तो लिहाजा जो बायलैटरल एक इसका पहलू है वो बहुत अहम है। इस मुलाकात ये जो हेड ऑफ सरबराह मुल्क के लेवल पर मुलाकात है, इसके नतीजे में यकीनी तौर पर रूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज होगा। जो अहम एजेंडा आइटम जो है आज जो ज़ेर बहस आने का इम्कान है उसमें बायलैटरल मामलात के अलावा अफगानिस्तान का जो इशू है, क्योंकि अफगानिस्तान के बराह रास्त जो मुतल्लिका मामलात है पाकिस्तान, रूस और दीगर ममालिक में,
उनका जो इंटरेस्ट है और उनके जो पॉलिसी है वो ज़ेर बहस आएगी। पाकिस्तान की बार बार कह चुका है कि अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो डेवलप हो रहा है। इस क्राइसिस को दूर करने के लिए रीजन के ममालिक जो है उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। रूस का भी इस मामले में अपना मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का भी इस मामले में अपना मौक़िफ़ है, तो इस मामले में यकीनी तौर पर बातचीत आएगी। इसके अलावा जो रूसी सदर जो है वो इस्लामोफोबिया के हवाले से गुज़श्ता चंद हफ्ते पहले उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया था, जिसको अप्रिशिएट किया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। तो लिहाजा इस मामले पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा कैसा होगा, ये भी बात ज़ेर बहस आएगी। और इसके अलावा जो इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात हैं, बैनुल-अक़वामी मामलात पर पाकिस्तान का रूस का मौक़िफ़ है, इस बारे में भी यकीनी तौर पर बहुत तफसील से तबादला ख्याल होगा। ठीक है तारिक, ये बताएगा कि ये तो अहम मुलाकात है सदर पुतिन के साथ, तो इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म का क्या स्केड्यूल होगा? आज ही इस मुलाकात के फौरी बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो बड़ी तारीखी जामे मस्जिद है उसका दौरा करना है। आज ये बड़ी तारीखी मस्जिद है, क्योंकि मैं बताता चलूँ कि रूस में तकरीबन 2 से 2.5 मिलियन मुस्लिम कम्युनिटी है, जो कि नेचुरल और पैदाइशी मुसलमान कम्युनिटी है। तो उनके हवाले से ये बड़ा अहम सेंटर है। मॉस्को में 2-3 और भी बड़ी मसाजिद है, लेकिन इस मस्जिद की, इस इस्लामी सेंटर की बड़ी तारीखी अहमियत है। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो यकीनी तौर पर ये इस लिहाज से बड़ा तारीखी लम्हा होगा कि एक मुसलमान मुल्क के सरबराह जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक जितने भी इस्लामी मुल्कों की शख्सियात और सरबराहान मुल्कियत आते हैं मॉस्को के दौरे पर, उनको शाही मस्जिद जो जामे मस्जिद है उसके इमाम की जानिब से दावत दी जाती है। तो आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब जो सदर साहब सदन की मुलाकात है उसके इस्लाम पर जब वो अगला जो उनका एजेंडा आइटम है वो इस मस्जिद का दौरा है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर की अहम मसरूफियात हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी करनी है। रूसी बिजनेसमैन जो कम्युनिटी है उनके साथ भी उनकी मुलाकात है। इसके अलावा एक ये इंटरेक्शन भी होगा और एक तकरीब जिसमें कुछ एमओयू पर साइन होने हैं उसको भी प्राइम मिनिस्टर विटनेस करेंगे। और उसके बाद अपनी मसरूफियात के इख्तिताम पर आज रात ही वो वापस इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है तारिक चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि आज अहम मुलाकात जो है वो सदर पुतिन की और वज़ीर आज़म इमरान खान की जो मुलाकात है वो इस वक्त जारी है। और इस मुलाकात से कबल वज़ीर आज़म ने दूसरी जंगी अजीम में मारे जाने वाले गुमनाम सिपाहियों की यादगार पर फूल भी चढ़ाए हैं। और ये जो मुलाकात हो रही है ये 3 घंटे पर मुश्तमिल है। इसके बाद जोहरानी का भी जो है वो वज़ीर आज़म को दावत दी गई है। इसके साथ साथ बड़ी मस्जिद का दौरा भी वज़ीर आज़म का आज शेड्यूल है। आपको बताते चलें कि ये 2 रोज का दौरा है, बहुत अहम दौरा इसको करार दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान रूस के तारीखी दौरे पर हैं और वो मॉस्को में मौजूद हैं। इस वक्त एयरपोर्ट पर डिप्टी वज़ीर खारजा ने रेड कारपेट पर उनका कल इस्तकबाल किया था, जबकि कप्तान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया था। इस पर मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त आसमा जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसमा जहांगीर। ये बताएगा कि वज़ीर आज़म 2 रोजा दौरे पर हैं, तो इनकी मुलाकात जो है वो कितनी अहमियत के हामिल है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर है कि बहुत अहम मुलाकात है जो कि होने जा रही है और बल्कि हो रही है इस वक्त। सारी दुनिया की निगाहें बल्कि अब इस मुलाकात के ऊपर हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके साथ जो है वो रूसी सदर के साथ मुलाकात हुई है। और ये एक बड़ी गैर मामूली ये हालात है और गैर मामूली ये मुलाकात है, क्योंकि आज सुबह ही बल्कि जो फैसला किया गया यूक्रेन पे अटैक का और रशिया की तरफ से अटैक हुआ है, उसके बाद पूरी दुनिया इस विजिट को बहुत हाईलाइट कर रही है। और प्राइम मिनिस्टर के पास भी जाहिर है कि बहुत ही अहम मौका है कि इस मामले के ऊपर जो है वो बात करेंगे और हो सकता है कि ऐसा स्टेटमेंट वो दें कि जिससे कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी खराब ना हो, बल्कि एक तरह से कोई ब्रिज बनने की पूरी दुनिया और रूस के बीच में उनकी कोशिश हो। तो जाहिर है कि अभी ये देखना बाकी है कि ये 3-4 घंटे की एक तवील मुलाकात है, इसके बाद आउटकम क्या निकलता है और क्या अलामिया सामने आता है या जो भी उनकी प्रेस टॉक होगी उसमें वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। लेकिन सवाल जरूर उनसे पूछे जाएंगे। एक तो ये कि यूक्रेनियन अटैक के ऊपर जो है वो प्राइम मिनिस्टर का क्या मौक़िफ़ है, जिसे कि पूरी दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है। सो प्राइम मिनिस्टर को देखना है कि वो क्या बात करते हैं इस हवाले से। रशिया के खिलाफ भी जाहिर है बात करना, वहाँ पे मौजूद हो के एक मुश्किल काम होगा और पूरी दुनिया को नाराज करना भी तो एक तरह से एक बड़ी एक टाइट सी जिसे कहना चाहिए एक तंग रस्सी के ऊपर जो है वो चलना होगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, और एक मुश्किल मरहला है। लेकिन जाहिर है कि अब इस मौके के ऊपर जो मुलाकात और बातचीत हो रही होगी उसके बाद अलामिया जब आएगा तो ये पता चलेगा कि क्या
सूरत सामने आ रही है। बिल्कुल। अच्छा आसमा शराजी, हमने देखा कि इस मुलाकात में जो है वो ये भी बताया गया है कि इस्लामोफोबिया के हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान खान बात करेंगे, अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे, और जब से वज़ीर आज़म वहां पर मौजूद हैं तो रूस और यूक्रेन के दरमियान जो तनाज़ा है वो भी खुलकर सामने आ रहा है, तो इस पर भी वज़ीर आज़म अपना जो है वो एक तबादला ख्याल करेंगे। आप क्या समझती हैं कि वज़ीर आज़म की जानिब से रूसी सदर को क्या क्या इक़दामात या क्या क्या अपने वो ख़यालात का इजहार करेंगे? देखिए, ये वही सारे ज़ाहिर टॉपिक्स हैं जो कि इस सिचुएशन से पहले तय किए गए थे दोनों वज़ीर आज़म के और सदर के दरमियान मुलाकात के लिए। और ये जो इस तरह के विजिट होते हैं, या ज़ाहिर है कि इनको बहुत पहले तय कर लिया जाता है, इनके स्केड्यूल बहुत पहले से तय होते हैं। मसलन कल से एक डिबेट हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर को ये दौरा कैंसिल कर देना चाहिए था इस तरह की सूरत हाल में, तो ये शायद वो मुनासिब वक्त नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर अपना दौरा कैंसिल करते या वो ना जाते। उनको एक तवील अरसे से जो एक तयशुदा प्रोग्राम था उसके ऊपर जाना था, और ना जाने का मकसद तो ये होता है कि आप एक और सिचुएशन को अपनी तरफ जो है या डिप्लोमेटिकली आप एक बहुत ही खराब जेस्चर जो है वो देते हैं, जो कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो प्राइम मिनिस्टर को ये दौरा करना था, और था भी बहुत अहम, क्योंकि लास्ट जो ट्रिप जो दौरा था वो आसिफ जरदारी साहब ने 2011 में एज प्रेसिडेंट किया था, और उस वक्त जो मुआहदे तय पाए थे उसमें गैस पाइपलाइन और जो बाकी चीजें थी वो सारे बहुत अहम मुआहदे उस वक्त जो थे वो रशिया के साथ जो है वो तय पाए थे। इस दफा भी कुछ इस किस्म की बातें हम सुन रहे थे कि कुछ मुआहदे होंगे, लेकिन ये याद रखा जाए कि कल के अटैक के बाद अमेरिका ने रूस के साथ जो है वो उनके ऊपर सैंक्शंस आयद करने का कह दिया है। नेटो ने अपनी फोर्सेस जो है वो भी तैयार कर दी हैं। तो अगर रूस के ऊपर पाबंदियां लग जाती हैं तो जाहिर है कि पाकिस्तान किस हद तक मुआहदे कर सकेगा, किस हद तक आगे जाके बातचीत कर सकेगा, और उसके अमली इक़दाम क्या होंगे, ये बहरहाल एक सोचने वाली चीज है। इस वक्त पाकिस्तान के रशिया के साथ ताल्लुकात कुछ बहुत ज्यादा तिजारती ताल्लुकात नहीं है, और तकरीबन हम अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका बहुत ही कम, बल्कि ना होने के बराबर हिस्सा जो है वो हमारा उनके साथ है। उनके मुकाबले पे हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो हमारी जो ट्रेड है वो यूरोपीय यूनियन के साथ है, हमारी अमेरिकन के साथ है, और हमारी वेस्ट के साथ है, और वेस्ट इस वक्त रशिया के खिलाफ खड़ा है। तो हमारा बड़ा जो स्टेक है वो तो यूरोप में और वेस्ट में है, लिहाजा उसको जाहिर है देखते हुए ही पाकिस्तान के वजीर आजम अपना जो प्रोग्राम है या अपनी जो बातचीत है वो इस हवाले से करेंगे, और यही देखना अब ज्यादा अहम है कि क्या प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ से लेके आते हैं, क्या मुआहदे वहाँ पे करते हैं, किस तरह की तिजारती जो आपके एग्रीमेंट्स हैं, MOUs हैं, वो साइन होते हैं, ये देखना बहुत ही अहम होगा। अच्छा आसमा शराजी, आप क्या समझती हैं कि ये जो 2 रोजा दौरा है वज़ीर आज़म का, इसके अंदर काफी कारोबारी शख्सियात से भी जो है वो वज़ीर आज़म मिलेंगे, और ये जो वहां पर सिचुएशन चल रही है काफी असरअंदाज हो सकती है? आप क्या समझती हैं कि गुज़िश्ता सालों में हमने जो देखा है रूस और पाकिस्तान के दरमियान जो एक दूरी थी वो इस 2 रोजा दौरे के बाद क्या कम हो जाएगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि उसमें काफी ज्यादा बर्फ जो है वो पिघलेगी, और लेकिन हम ऐसा ना हो कि इस बर्फ पिघलने से जाहिर है इस वक्त दुनिया जो है वो ब्लॉक्स में तकसीम हो रही है। पाकिस्तान हमेशा से हमारी पोजीशन रही है फॉरेन ऑफिस की भी, और हमारी पॉलिसी भी है कि हम एक किसी भी ब्लॉक का हिस्सा जो है वो काफी अरसे तक के बाद ये रियलाइजेशन हुई कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इस वक्त जो एक 2 ब्लॉक्स हैं, एक वेस्टर्न ब्लॉक है और एक जो है वो ईस्टर्न ब्लॉक, जो हम उसको कह सकते हैं कि वो मुरतब हो गए हैं या शक्ल इख्तियार कर गए हैं। तो अब ये देखना बहुत अहम होगा कि पाकिस्तान किस हद तक गैर जानिबदार रह पाएगा, और गैर जानिबदारी हमारी खारजा पॉलिसी की पहली जो है वो रूह है। तो अब इस दौरे के बाद क्या होता है, वेस्ट कैसे रिएक्ट करता है, अमेरिका कैसे इसको देखता है, जाहिर है कि ये बहुत अहम है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो चाहे तो जाहिर है कि जिस तरह से इस वक्त सूरत हाल है, बिल्कुल अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी के साथ दुनिया के साथ, वेस्ट के साथ भी और पूरी दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बना सकता है। लेकिन जो टाइमिंग आ गई है इस दौरे की, उसके बाद क्या असरात मुरतब होंगे ये देखना बिल्कुल एलामिया आने के बाद ही जो है वो पिक्चर क्लियर होगी कि जो भी तनाजात हैं और पाकिस्तान और रूस के दरमियान जितनी जो बर्फ जमी हुई थी वो कितनी पिघलेगी। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोजा रूस के तारीखी दौरे पर मॉस्को में मौजूद हैं, और कल वज़ीर आज़म इमरान एयरपोर्ट पर जो है वो डिप्टी वज़ीर ख़ारजा ने रेड कारपेट पर उनका इस्तकबाल भी किया, जबकि कप्तान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया था। वज़ीर आज़म आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात 3
3 घंटे के वक्त पर मुश्तमिल है और इस वक्त जो है वो ये मुलाकात का जो सिलसिला है वो जारी है, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और खत्ते में सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके साथ इस्लामोफोबिया, अफगान सूरत हाल पर भी बात होगी। इसके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के बाद वो बड़ी मस्जिद का दौरा भी उनका शेड्यूल है। और आपको बताते चलें कि व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात से कबल जो है वो वज़ीर आज़म ने दूसरी जंग अज़ीम में मारे जाने वाले गुमनाम सिपाहियों की यादगार पर फूल भी चढ़ाए थे।